A very good morning, everyone. It's 11:11, and we are live again today to discuss about how you can create magic using Ho'oponopo. Today, we will meet Jolly Jalpa. She is a magical healer. She has really changed a lot of lives, and I am here. I think she is here. Yeah, we are going live with her. So, if you have any question regarding Ho'oponopo and you're already aware about that, you can today ask Jolly Jalpa about your all questions. She will definitely help you today. And it's been like not long time that I am aware about Ho'oponopo, and I've seen the magic of Ho'oponopo in my life. Literally. And I have seen a lot of people who have literally changed their lives using Ho'oponopo. And same, we are going to learn from Jolly Jalpa ji today that how we can also create magic in our lives. Hi, Jolly ji. Yes, she's Hi, here with. Hi, hi, Jolly ji. Jayshree. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Great. Happy to see you. Today, as I mentioned earlier, today I am feeling that this live, my most of the lives are 30 minutes only. But today I feel that I will not be able to cover in 30 minutes, and we really need more than 30 minutes, 1 hour or so, whatever I you take. Today's time is all yours, and let's start. Thank you so much, Jayshree, for calling me on your stage. And of course, it's my pleasure to share this divine prayer with all of you guys. And as my mentor always said, कि ये प्रेयर घर घर में पहुंचनी चाहिए, घर घर में इसकी जरूरत है. Even though people have financial freedom और relations अच्छे हैं, सब कुछ है, but it is very important. It is like के जैसे आपका घर हर रोज साफ करना जरूरी है, ओके, तो उसी Right. तरह आपके माइंड की क्लीनिंग भी डेली होनी बहुत जरूरी है. ओके ओके मीन्स आप कह रहे हो कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, देन स्टिल वी शुड डू होपोनोपो इन आवर लाइफ. यस, डेफिनेटली 100% ट्रू. तो ओके आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन, मेरे जितने क्लाइंट है, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको तो पता ही है कि मैं प्रीफर करती हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठते ही एक बार 108 चैंटिंग करो. एंड रात को सोने से पहले भी जस्ट बिफोर यू स्लीप, तो आपका डेली रूटीन चलता रहेगा, आपका डेली गार्बेज साफ होता रहेगा. So I want कि before we start and go ahead, let's do this 5 times chanting of Ho'oponopono. Sure. Because I have seen a lot of people are not ever aware about what exactly is Ho'oponopo. Because I just ran a poll a few days back, and I asked people that how many are you aware about Ho'oponopono, and a lot of people are not aware about that. They don't know what exactly it is. So let's start the prayer. Yeah, definitely. I'll Okay, close follow your you. eyes. Yeah, Okay. close your eyes. Relax your body. Take a deep breath. Continue taking deep breathing. And forget about any thoughts, any worries. Just be present and surrender to the universe. And start chanting with me. You can keep your hand on your heart. I'm sorry. Please forgive I'm me. sorry. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry.
Please forgive me. Please forgive me. Thank you. I thank you And I love you. and I love you. Take a deep breath and slowly open your eyes. Yeah, that's Thank it. you so much. This is very calming. Yeah, it's amazing. Yeah. Yeah. So I So, have how one can question. Like I help today, I am your doing prayer. Was I referring to universe or like someone? Like Yes. So it's a divine, we are asking for divine guidance. Basically, uh, we have stored so much memory in our brain. Okay. And I want to share with you particular numbers. And as I always say, with numbers, I have to note down. So, you know what happened? Our brain cell has 82 one cell has 82 GB memory स्टोरेज. okay, ओके, हमारा एक ब्रेन सेल है ना, वो 82 जीबी तक का मेमोरी स्टोर कर सकता है. okay, ओके, एंड वी हैव अराउंड 80 बिलियंस मेमोरी सेल्स इन आवर ब्रेन. okay. Okay, so this concept I teach in NLP. Okay, but I want to share here कि सोचो कितनी मेमोरी है हमारे ब्रेन सेल के अंदर. Right, And if you think as a source, we are source. Okay, आत्मा मरती नहीं है. We all know that. This is just a cloth. This body is just a cloth what we wear in this lifetime. Okay, हमने कितनी okay. जन्म ले लिए. आत्मा वही है, सोल वही है. बहुत सारे जन्म ले लिए, उसके कॉस्ट्यूम चेंज हुए. बीके शिवानी Right. जी के लैंग्वेज में, बिकॉज आई एम सो मच एडमायर हर. तो Same here, कॉस्ट्यूम same चेंज here. होते हैं, ठीक है, बट आत्मा सेम है. तो मेमोरीज भी कितनी है, और वो Right, एवरी एवरी आपका जो भी एक लाइफ टाइम होता है उसके साथ आपकी मेमोरी वहां पे और स्टोरेज आपका बढ़ता जाता है. ठीक है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसको रिलीज करो जो आपके काम का नहीं है. यू हैव सीन okay. that or heard that or experience that कि पेरेंट्स अलग होते हैं और बच्चे कुछ अलग बिहेव करते हैं, और पेरेंट्स ही बोलते हैं पता नहीं घर में ऐसा तो कोई नहीं है, बच्चा ऐसे बिहेव क्यों करता है, Right, right, right. why he is behaving like that. अरे दे दो बेटा, किसी की चीजें नहीं लेते, हमारे घर में बहुत है. लेकिन वो सोल ये कहां से लेके आया पैटर्न अपनी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज ऑलरेडी पहले से है. Right, अच्छी भी है, बुरी भी है. वी डोंट नो, उसको भी नहीं पता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है. बट आफ्टर आई व्हेन आई स्टार्टेड होपोनोपोनो, मुझे भी नहीं पता था कि ये प्रेयर क्या करेगी, क्या है. ओके, कुछ नहीं. मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए था, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी, ओम चैंटिंग करती थी, मेडिटेशन करने को ट्राई करती थी, लेकिन मेडिटेशन होता नहीं था बिकॉज so much going on inside. same. Yes, Okay, it is impossible to close your eyes and being thoughtless. Okay, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए. right, तो वो बहुत ही दूर की बात थी. तो यूनिवर्स का गाइडेंस आया, ये प्रेयर मेरे सामने आई एंड आई लिसन इट एंड आई वाज अमेज. मतलब मुझे कुछ पीस लगा अपने अंदर. तो वैसे ही मैंने जैसे एक रूटीन बनाया हुआ था मॉर्निंग में कि इतने मंत्रास चैंटिंग सुबह उठ के करना है सो दैट आई कैन फील रिलैक्स फ्रॉम इनसाइड. तो मैंने उसमें ये प्रेयर भी स्टार्ट की. लेकिन थोड़े टाइम के बाद व्हाट आई रियलाइज के इन माय लाइफ ऐसी कुछ चीजें होने लगी जिसको मैं सीख कर रही थी सिंस सो मेनी इयर्स, विच वाज स्टक. एंड आई वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो रहा है, जो मेरे इतने सारे
फोर्स के बाद, मैं कॉन्शियसली ट्रायल के बाद भी ये चीजें नहीं हो रही थी, वो एफर्टलेसली कैसे हो रही है। और ये सिलसिला चलता रहा 1 2 3 4 6 महीने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे। वाह। सो आई ऑलवेज सजेस्ट, जो लोग भी ये प्रेयर्स करते हैं या मेरे पास भी जो आते हैं, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, पेशेंस फॉर योरसेल्फ। सब चीज एकदम से नहीं होती है। राइट। we are came from so many journeys। तो कितना सारा डेटा है आपके अंदर। तो एकदम से आप अगर चाहोगे कि 1 महीने का कोर्स कर लूं और मेरी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो सब चले जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। Not possible. सो You आई have to constantly be working on yourself, what I have realized now. तो मैंने तो 1.5 2 साल तो सिर्फ बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ ये चैंटिंग की है और कुछ नहीं किया। फिर जब मुझे पता चला कि ये प्रेयर से मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने उसके बाद इसके बारे में सर्चिंग करा, यूट्यूब पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी देखी, फिर जो विटाली की बुक तरफ पहुंची, फिर ऑडियो बुक सुनी, फिर बहुत कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद तो कॉन्शियसली आया। फिर मैंने सर्टिफिकेशन भी किया इसमें, फिर आज 2 साल से मैं लोगों को भी ये कराती हूँ। सो यस, बट इनिशियली यू हैव टू बी पेशेंस विथ योरसेल्फ। और अगर 2 4 या 6 महीने में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता भी है, तो इजंट इट वर्थ जो 10 It साल is 20 साल या 30 साल में भी नहीं हो रहा था, वो अगर 3 महीने या 6 महीने में हो रहा है, तो फिर किस बात की लड़ाई है भाई। right. 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 So, like, I want to ask you that, like, what exactly is the minimum? Like, if I talk about me, I'm not a very, consistent person. I lose my, discipline lot of times. So, what is the minimum times I should do this prayer? That कि जयश्री इतना तो करो, so that you get some result. What is the minimum? So initially I always say कि आप 108 टाइम करो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में रात को सोते टाइम। बट ऐसा नहीं है। जैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं घूमती रहती हूँ, मेरे डेस्क पे, मेरे लैपटॉप पे ये प्रेयर चलती रहती है। तो इट इज नॉट लाइक कि मुझे ही बोलना है। इवन दो दिस 4 phrases कैन क्लीन सो मेनी मेमोरीज। Okay, वो nice. मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे आसपास में भी जो भी कुछ डेटा है जो नेगेटिव है, वो क्लियर करता है। तो Right. बेसिकली फंडा क्या है इसका कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई वालों को पता है कि ट्रैफिक का कितना इश्यू है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी Right. 1 किलोमीटर का रास्ता कभी कभी 1 घंटे का भी हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन यू पास दैट रोड, तो अगर आप नॉर्मल उसमें देखो तो वहां तक पहुंचने में आपको 5 या 7 मिनट लगनी चाहिए, डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक जाने के लिए। ठीक है, बट अगर ट्रैफिक है तो इट मे बी टेक 1.5 hour, वॉट एवर इट बी। जहां तक ट्रैफिक जाम है वो आपको बहुत ही स्टक करेगा। तो दिस प्रेयर व्हाट डिड इट कि वो आपकी लाइफ के पाथ में जो भी ट्रैफिक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, आपकी डेस्टिनेशन तक जाने के रास्ते में, उस ट्रैफिक को ये क्लियर करता है। Okay, और nice. आप अपने डेस्टिनेशन तक बहुत ही जल्दी पहुंचते हो। जैसे अब्राहम हिक्स कहती है कि एवरीथिंग यू थिंक, एवरी थॉट इज ऑलवेज देयर इन पैरेलल यूनिवर्स। अगर आप बोलो कि मुझे 2 मिलियन 1 महीने में करना है, तो वो भी है। और अगर आप बोलो कि मैं नहीं कर पाती 100 रुपीज भी महीने का, तो वो भी अवेलेबल है। आपके पैरेलल इन यूनिवर्स हैव ऑल मेनू कार्ड। आपको सिलेक्ट करना है आपको क्या लेना है उसमें से। ओके, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन। यू सेड कि आपके वो ना चलता रहता है,
अगर आप नहीं भी बोल रहे हो तो चलता रहता है होपोनोपो प्रेयर. बट आई ऑलवेज यूज टू लिसन टू भजन्स. जैसे मॉर्निंग में उठते ही मेरी आदत है कि मैं भजन्स चलाऊं. रात को भी कभी कभी सोने से पहले, जस्ट सो दैट आई गेट अ गुड स्लीप, आई प्ले भजन्स. सो शुड आई रिप्लेस भजन्स, लाइक हाउ, लाइक बिकॉज एक आदत है बचपन से, यू नो. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? बिकॉज वो भी नहीं, एक कामिंग दे रहा है, बट हाँ, this prayer is something different. So what, how can I, because maybe एक और लोगों का questions भी हो सकता है, so that's why I'm asking you this question. you don't want to don't have to replace that. I always suggest कि जो चीज आपको जॉय देती है, पीस देती है, वो करो. दैट इज Okay. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये प्रेयर क्या करेगी, आपको जब भी टाइम है आप करते रहो, तो आपका जो डेटा है, जो नेगेटिव डेटा है, जो आपके अंदर स्टोर है अनकॉन्शियसली, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ फोबिया ऑफ डॉग, और यू कैन से एनिमल फोबिया. ओके, बहुत सारे एनिमल्स तो मैं पास में भी, इवन दो मतलब पिजन भी है तो मुझे दूर से ही ठीक है. आई हैव अ फोबिया. ओके. Okay. But what I realized since last 6 or 8 months, now I don't feel any kind of fear with Okay. dogs. Nice. Yes. तो ये कहाँ से आया? मैंने कॉन्सियसली कुछ नहीं किया. मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि मैं डॉग फोबिया निकालने के लिए इस प्रेयर को चैंट करूं. बट वेन यू डू इट कॉन्स्टेंटली, तो शायद ये बहुत पुराना फोबिया होगा. तो इसके लिए मैं जैसे ये 4 सालों से कर रही हूँ, ठीक है, कंटिन्यू डे नाइट. इनिशियली तो मैं लॉकडाउन में तो 2-2, 3-3 घंटा करती थी. जितना Wow. भी मुझे टाइम मिला मैं बैठ जाती थी. जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, मेरे घर पे कोई नहीं होता था, तो आई जस्ट यूज टू प्ले दिस प्रेयर. आई आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ बस. तो Okay. आई विल नॉट से कि आप रिप्लेस करो, बट यस आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी आपकी मेमोरी है पास की, जो आपको नहीं पता है, ठीक है. फॉर Mm-hmm. एग्जाम्पल पीएलआर होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन. ऑल Right. हीलिंग मॉडलिटीज आर अमेजिंग ऑन देयर प्लेस. आई ऑलवेज से दैट एक भी Right. हीलिंग मॉडलिटीज ऐसी नहीं है कि जो आप एनर्जी लेवल पे वो गलत है या काम नहीं करती. एवरीथिंग वर्क्स. I learn Reiki, I like Akashic healing, I learn crystal healing, I learn स्वविज्ञान, I learn, मतलब मैंने लास्ट ईयर अराउंड 18 हीलिंग मॉडलिटीज ट्राई की है, बिलीव मी, एंड एवरीथिंग वर्क्स मैजिकली. बट वाई आई एम फॉन्ड ऑफ दिस प्रेयर, बिकॉज यहाँ पे आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि आपके अंदर कौन सा नेगेटिव डेटा है, उसको क्लियर कैसे करना है, वो कहाँ से रिलीज होगा. यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग. जस्ट repeat these 4 sentences, and these 4 sentences itself have a magical frequency within them, and they will heal your life. ओके. ओके. एंड लाइक मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ. जैसे आपने बोला ये 4 सेंटेंसेस, तो ये 4 सेंटेंसेस में यूनिवर्स को बोल रही हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, और इज इट आई एम टेलिंग टू माई सेल्फ? Both you can say, because हम क्या है, वी आर द पार्ट ऑफ डिवाइन. वी ऑल, हम बोलते हैं ना हमारे अंदर ही भगवान है, और है ना. एब्सोल्युटली. हाँ, ये जैसे हमारे आगे जो भी एनर्जीज हो गई, बड़ी बड़ी आत्माएं जो हो गई, ठीक है, वो कौन थे? ह्यूमन ही थे. 2 आंख 2 कान, ठीक है. राइट. तो उनके अंदर ऐसा क्या था? उनके अंदर नेगेटिव डेटा बहुत कम था. उन्होंने अपना सोर्स को पहचानने के लिए, अपने हायर सेल्फ को पहचानने के लिए उसके ऊपर वर्क किया था. मैं अभी का ओके. एग्जांपल देती हूँ. नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन का फास्ट रख दिया नारियल पानी पे, और हम बोलते हैं कि 2 दिन भी फास्ट रखना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल. राइट. खाना तो राइट. पड़ेगा, जीने के लिए खाना पड़ेगा. वो नहीं जी रहे क्या? ट्रू. ट्रू. तो वी आर द वन के हम अपने सोर्स के पावर को पहचान नहीं पा रहे. तो अंडरस्टूड. जैसे जैसे आप अपना नेगेटिव डेटा क्लियर करोगे ना, आपका सोर्स एक हायर पावर महसूस करे.
ओके ओके और वो कैसे करना है, रिलीज कैसे करना है, कौन सा नेगेटिव डेटा है, वो सब हमें नहीं पता है. राइट 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 अनदर नंबर आई हैव wrote here. 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट डेटा स्टोर हो सकता है हमारा. ओके 1 ग्राम डीएनए, 1 ग्राम. ठीक है, डेटा मतलब मेमोरीज. डेटा मतलब मेमोरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस यस, ठीक है. राइट 14 पेड़ी की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में है. अमेजिंग तो सोचो कितनी मेमोरी है हमारे पास. राइट एंड नाउ if you start today to do this prayer and you wish कि मेरी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल है, वो 15 दिन में रिजॉल्व हो जाए विद दिस प्रेयर. इज इट पॉसिबल? आई फील सो could be could be मे नॉट बी. right suppose we want to do this prayer for someone, some particular person, or like we want to heal a relationship, or we want to do for our boss. We are not sometimes you are doing everything good in office and you don't get the support of certain people. Can we do this as well? Yeah, definitely. Actually, as per Dr. Yulan, everything at zero frequency, zero level, सब कुछ बहुत अच्छा है. जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम हमारी ट्राइब में भी बोलते हैं ICU. ठीक है, ICU किसको बोलते हैं? हमारे सामने वाले की सोल को, क्योंकि वो इंसान भले कैसा भी है, लेकिन उसके अंदर जो सोल है, आत्मा है, वो तो डिवाइन है. ठीक है, तो हर एक आत्मा अपने सोल लेवल पे बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है. ठीक है, तो सॉरी आई ब्लू समथिंग. तो बहुत हर एक आत्मा अपने सोल लेवल पे बहुत ही प्योर है. ठीक है, बट होता क्या है कि ये जो मेमोरीज उसके साथ आती है ना, उसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस आती है. तुम जो रिलेशन का और वो जो बोल रहे हो ना, वो उसकी वजह से होता है. तो इट इज नॉट लाइक कि वो वहां पे है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब में आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ इश्यू है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इश्यू उस पर्सन को सबके साथ है, मे बी सिर्फ आपके साथ ही है. ठीक है, तो समटाइम्स यू थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे साथ ही इसका कुछ ना कुछ होता रहता है, बाकी सबके साथ तो ये ठीक रहता है. राइट बिकॉज देयर इज समथिंग बिटवीन टू ऑफ यू. ओके तो वो कुछ मेमोरी है आपकी पास्ट है, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स बाय टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन और दिस इमोशन कि जो आपको इस रिलेशनशिप में फील करते हो आप. मे बी इरिटेशन होता है उस पर्सन को देख के, वो जब भी आता है एंजाइटी हो जाती है उसको देख के आसपास. ठीक है, तो यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट इमोशन. एंड देन सरेंडर टू द डिवाइन कि जो भी होगा, ठीक है, I take 100% responsibility of this situation, this emotion I am feeling right now. I'm sorry इसके लिए कि मैंने इस सोल को पेन पहुंचाया. ये सोल डिजर्व नहीं करती, ये सोल तो जॉय डिजर्व करती है. राइट प्लीज फॉरगिव मी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ इस सिचुएशन को, पेन ले रही हूँ, मैं अपने डिवाइन पावर को भूल गई हूं. थैंक यू फॉर रियलाइजिंग मी कि ये सीड इरिटेशन वाला, एंजाइटी वाला अभी भी मेरे अंदर है एंड आई हैव टू रिमूव इट. आई लव यू इसके लिए कि इसके बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा. और सॉल्यूशन भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये प्रेयर करने के बाद आप जो चाहते हो वही हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि आप जॉब के लिए ये प्रेयर कर रहे हो
तो आपको जिस कंपनी में चाहिए, हो सकता है उस कंपनी के में जॉब के लिए आप ये प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आपको वहां से रिजेक्शन मिले और आपको लगेगा, बहुत सारे लोग आते हैं, आपने बोला था हो जाएगा, मैंने किया तो मिला नहीं। यस, क्योंकि आप जब डिवाइन को सरेंडर करते हो तो आपको नहीं पता कि आपके लिए सही चीज क्या है। शायद उस जगह पे जॉब करके इन फ्यूचर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला था, या कुछ वो एनवायरमेंट आपके लिए सही नहीं है, या आप जो चाहते हो वैसा ग्रोथ आपको वहां नहीं मिलने वाला है। दैट इज वाई यूनिवर्स डिनाइड दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। But believe in your power, surrender to the universe. Universe definitely will create something very big opportunity for you. आपको सिर्फ अपनी क्लीनिंग करते रहना है। राइट राइट। तो मेरे मन में आप एकदम से क्वेश्चन आया कि आप 4 इयर्स से कर रहे हो, तो मतलब ऐसा क्या मैजिक हुआ है आपकी लाइफ में, लाइक यू आर स्टिल वेरी, यू आर टॉकिंग विद वेरी कॉन्फिडेंस, आप सबको अभी भी बता रहे हो 4 इयर्स से कर रहे हो, मीन्स व्हाट चेंजेस एग्जैक्टली, लाइक अगर आप शॉर्ट में बता दो थोड़ा सा कि ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्या, यू आर सो फॉन्ड एक ऑफ फनी दिस फनी वाला प्रेयर। एग्जांपल ले लेते हैं, फनी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, ठीक है। लेकिन मतलब शादी की तब से मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना पसंद नहीं। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो बोलते हैं कि बाहर नहीं खाना चाहिए। हेल्थ वाइज उनका ये है कि हेल्दी खाओ, घर का खाओ, ठीक है। तो ही इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि हर चीज में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। एंड एट दैट टाइम आई वाज मॉम ऑफ 4 year old डॉटर। तो मैं फिजिकली भी मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मेंटली भी मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी। तो मेरे लिए ये चीज मतलब बच्चे को लेके घर के बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, घर में कुछ आता नहीं है, और बच्चे को हैंडल करके पूरा दिन खाना बनाना, ये सब बहुत ही ऐसी सिचुएशन थी मेरे लिए कि मैं मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो गई थी कि एक अकेला इंसान कितना करे। बट व्हाट आई सॉ कि जब मैंने ये स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड हर चीज में बहुत ही लिबरेट हो रहे थे मेरे मेरे साथ। हाँ चलेगा, ये कर लो, हाँ चलेगा ना। आई वाज सरप्राइज, ये इंसान जो इतने साल से हाँ नहीं बोला, हाँ बोल रहा है। और कभी कभी मतलब वो ऑफिस से लेट आते थे 10 बजे, एंड आई वाज लाइक कि यार अभी तक मैंने खाना बनाया नहीं, मैं इसको संभालू कि किस क्या करूं। तो ही वाज लाइक डोंट वरी ना, पार्सल मंगा लेंगे। आई वाज लाइक हैं, ये कौन बोल रहा है कि पार्सल मंगा लेंगे? जो बंदा मतलब इतने साल से, अभी भी गूज़बम्प हो रहे हैं मुझे। दिस इज रियल स्टोरी, और आई एम श्योर वो लोग मुझसे रिलेट करेंगे जो लोग ये पोजीशन में है कि ये अलाउ कैसे कर रहा है। और दिस सिचुएशन इन माय हाउस इज स्टिल हैपनिंग। मेरी 8 साल की बच्ची बोलती है मम्मा ऐसा पापा ने बोला, पापा चेंज हो गए। मतलब अब तो उसको भी पता है। एंड बिलीव मी, मेरी शादी के बाद मैं बहुत सालों तक उनको समझाते रही, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं पहले से ट्राई करती थी, ठीक है। इवन तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी पहले, तो मैं करती थी। बट ओके। आफ्टर मैरिज वो होता है ना कि भूल जाते हैं सब कुछ, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते तो। और हम लोगों को सिखाने जाते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, देखो ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। और हमको लगता है यार कोई सुनता ही नहीं, मैं सच बात बोल रही हूँ, इट वर्क्स। बट आप सब करके जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, तो ऐसा लगता है नहीं, अब सिर्फ अपने पे काम करना है। और जब आप अपने पे काम शुरू करोगे ना, लोग आपको फॉलो करेंगे। That's exactly true. I know I'm deviating for the topic. This since you have seen people doing self-love, starting self-love, started working on their self, people are, more attracted towards them. सो मेरे उसमें भी ऐसा होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं मैंने आपकी प्रेयर है ना, मुझे बहुत अफेक्ट करी। मैंने अपने पेरेंट्स को बोली, मैंने अपने हस्बैंड को बोली, डॉटर्स को सिखा रही हूँ, नहीं सीख रहे। मेरी दीदी को घर में इतना प्रॉब्लम है, उसको बोल रही हूँ, नहीं कर रहे। डोंट ट्राई टू चेंज पीपल। और सबके Yes. उसमें ये प्रेयर आएगी भी नहीं दिमाग में। आप उनको कितना भी पुश करोगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनके कर्मा बाकी है। उनके Understood. बहुत कुछ उनकी लाइफ में अभी बाकी है जो उनको भुगतना है। जब तक ये
पूरा नहीं होगा तब तक उनकी लाइफ में ये चीज आएगी नहीं. आएगी नहीं. Okay. Like a lot of people are not aware about Ho'oponopo. Even I came to know about this 7-8 months back. Before that मुझे कुछ पता नहीं था ये क्या है क्या नहीं एग्जिस्ट भी करता है नहीं. Why it took me so many years to know. मुझे ऐसा लगता है पहले से पता होता तो मैं अपनी लाइफ कितनी चेंज कर लेती. बट अब जाके पता चला है जस्ट 7-8 months back. यस जयश्री क्या होता है ना, वी आर हियर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, वी आर ऑन अ सोल जर्नी. ठीक है, तो हमें पता है कि हम इधर क्यों आए हैं. बट व्हेन वी केम इन दिस कॉस्ट्यूम, इन दिस बॉडी, वी फॉरगेट आवर सोल पर्पस. और हमें हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, वो परेशान करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है. एक्चुअली वो हमने ही चूज किया होता है इस सोल जर्नी में, बट वी फॉरगेट अबाउट इट एंड वी स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट इट. और जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो सिचुएशंस को, स्ट्रगल्स को, उन सब को, तब तक वो और बढ़ती जाएगी. और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे और आप बोलोगे नाउ इट इज डन, आई डोंट वांट इट, आई वांट सॉल्यूशन, प्लीज हेल्प मी. Yes, that's what I did. True. यस, तो जब तक वो सिचुएशन नहीं आएगी, आप मांगोगे नहीं. ठीक है, आप कंप्लेनिंग क्रीपिंग मोड से बाहर नहीं आओगे, तब तक ये प्रेयर आपकी लाइफ में नहीं आएगी. Okay. Understood. और True. जैसे यस, तो जैसे पूजा पुनीत बोलती है ना, पहले समझ गए तो अच्छा है, पहले थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ में नहीं समझे तो मुक्का पड़ेगा, मुक्का नहीं, मुक्के में नहीं समझे तो और कुछ, फिर लातम बात, मतलब फिर आपकी जिंदगी गई. तो मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ था. धीरे 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 कंडीशन वर्स होने लगी, लेकिन मैं नहीं समझ पाई. एंड ऐसा टाइम आया कि मुझे बेड रेस्ट हो गया. Okay. और डॉक्टर ने बोला इट कुड बी 3 months, 6 months, 9 months, इट्स डिपेंड्स ऑन यू. एंड आई वाज शॉक्ड, है डिपेंड ऑन मी even though I am taking medicines. And let me tell you, I am pharmacist also. Okay, I have a 12 years of experience in medical line. तो I was Nice. shocked कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हूँ, मैं मेडिसिन का पावर जानती हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में ये चीज क्यों आई. लेकिन अगर वो चीज नहीं आई होती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती. तो हो सकता है उस सिचुएशन में मैंने शुरुआत में बहुत कंप्लेन की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इवन दो आई एम ऑलवेज गुड टू एवरीवन, आई डिड सो मेनी थिंग्स फॉर एवरीवन, आई ट्राइड सो हार्ड इन माय लाइफ फॉर come out every situation and bring my life to something else, but I was wrong. मुझे उस situations में सीखना था, लर्निंग लेनी थी, जो मैं नहीं ले रही थी. इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती, जो भी सिचुएशंस आते हैं ना, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, एक्सेप्ट कर लो. इफ यू आर हैविंग हेडेक ना, एक बार शांति से बैठ के बोलो उस हेडेक को, बात करो उससे. आई एक्सेप्ट यू डियर पेन, आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू. Try it within 5 minutes. But how can you say, I'm sorry to interrupt, how can we say I love you to the headache? Because yes, because we don't like it. Nobody likes कि उसको headache हो. Because हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए वो हमको इरिटेट कर रहा है. लव इज द ओनली मेडिसिन दैट कैन remove anything, any negativity. Okay. So even though it is a pain, try to love it. बच्चा जब ज्यादा टेंट्रम करता है ना, तो आप उसको 2 और नहीं लगाते, आप उसको पकड़ के हग कर लो. Right. Right. So that is how we are doing. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. And you can heal anything, your mobile, your laptop, your scooter, anything. As I don't know, I
told you or not के मैं बारिश की सीजन में अगर चाहूँ तो बारिश भी मेरे 4 या 5 चैंटिंग से बारिश स्टॉप हो जाती है. इज इट लाइक कि मेरे Okay. पास कोई जीनी है? नो. सोचो मुंबई की बारिश 5 मिनट में पानी भर दे, Right. लेकिन मुझे अभी तक बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. और Wow. नॉट तो इवन बारिश से ट्रैफिक. पहले बोल देते हो prayer and then the rain stops. नहीं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे मैं अपनी डॉटर को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है, और घर में सब बोल रहे हैं रेनकोट निकालो, देखो बारिश बहुत हो रही है, तुम्हें जाना है, और मैं अपने सेशन में होती हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है. आई वाज लाइक मैं रन करती होती हूँ, जैसे सेशन खत्म हुआ मैं उसको ड्रॉप करने गई, एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, उसको उसका काम करने दो, मैं जाऊंगी तब बारिश स्टॉप हो जाएगी, ठीक है. और मेरे तो बैक ऑफ माइंड पूरा दिन चलता रहता है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी प्लीज फॉरगिव. और जैसे ही मैं निकलती हूँ, आई एम सॉरी रेन, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू डियर रेन, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी. जब तक नीचे पहुंचती हूँ बारिश एकदम हल्की सी हो जाती है और बंद हो जाती है. Wow. मैं जैसे घर पे आती हूँ बारिश होती है बराबर से, एंड एवरीवन से है तू आई, अच्छा हुआ तू टाइम पे आ गई, बारिश बहुत स्टार्ट हो गई. और मैं बोलती हूँ वो मेरे लिए रुकी थी. So you can control weather also. Wow. I think we can control a lot of things then. If we can control weather, is like which is not controlled by human being. I think then if we can control weather through this prayer, then we can control a lot of things. It is not like we can control. We are just cleaning memories from inside. Normal people, normally हम लोग क्या सोचते हैं? Normally हम लोग क्या वो करते हैं कि अरे बाप रे बारिश आ गई. Okay, you can hear me, right? Yes, Yeah. I can hear you. बारिश आ गई, क्या होगा, ये वो, मतलब स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है. Right. बट आफ्टर डूइंग दिस प्रेयर्स एंड प्रैक्टिसिंग दिस प्रेयर्स सिंस लॉन्ग, नाउ मुझे वो सिचुएशंस इतनी पिंग नहीं करती, ट्रिगर नहीं करती. Okay. माई सेल्फ ओनली. तो डॉक्टर यूलेन कहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है ना, दैट इज मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ इनसाइड यू. Oh my God. तो मतलब जो भी नेगेटिव सिचुएशंस सामने आती है, those are all reflections. Okay. Everything. If you are watching somebody's accident, yes, there is a seed within you, in Okay. your memory. Understood. That is why it's happening in front of you. For example, मेरे घर में हर रोज का होता है, मेरी डॉटर मेरे हस्बैंड के साथ बहुत रिक्जिक करती है, उन दोनों का बहुत चलता है. मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ, सी ऑलवेज मतलब पोलाइटली यस मम्मा, यस मम्मा, यस मम्मा, ओके. एंड माय हस्बैंड वाज सरप्राइज कि ये तुम्हारे साथ कितना इजीली बात करती, मेरे साथ क्यों नहीं. एंड आई वाज लाइक यू शुड ट्राई दिस प्रेयर बिकॉज सीड विद इन यू. When you feel peace within you, you reflect peace from outside. Okay. तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, if you are going through money issue, if you are going through any health challenges, seed within you. Okay. और जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब आप ये क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो इंटेंशन मत दीजिए कि मुझे ये चीज चाहिए, Right. उसी के लिए इसका सॉल्यूशन यही होना चाहिए. बिकॉज यू नेवर नो कि आपके लिए क्या सही है. और जैसे हाँ यूलेन बोलते हैं कि इंटेंशन इज अ टॉय जो हम प्ले करवाते हैं हमारे दिमाग से, हमारे थॉट की उपज है कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, बट मे बी यू डिजर्व मोर. Yes. गो विथ इंट्यूशन, डिवाइन गाइडेंस. और वो कहां से आएगा?
जब आप सरेंडर करोगे, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तब वो आएगा। ओके। तो वो कुछ भी हो सकता है, फिर ओपन फॉर ऑल। जैसे ओके। मैंने सो लास्ट ईयर पूरा साल फ्री में होपोनोपोनो सेशन चलाए थे, एंड इट वाज ए इंट्यूशन बेस्ड गाइडेंस इन माय माइंड व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग। तो मैंने पूरा साल चलाया, मैंने देखा कि अरे अगर मुझे ये गाइडेंस आया है, यूनिवर्स ने मुझे ये चीज दी है, तो देयर इज समथिंग विद इन दिस। तो मुझे राइट। वो कंटिन्यू करना था। तो ऐसा कई बार हुआ कि मेरे सेशन में सिर्फ एक पर्सन आया, ओके। बट आई वॉज ओके विद दैट। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, क्रिबिंग नहीं किया, आई वॉज हैप्पी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं ज्वाइन हुई और कोई नहीं आया, फिर भी मैंने चैंटिंग किया एंड क्लोज किया। क्यों? क्योंकि मुझे गाइडेंस आया, मुझे नहीं पता डिवाइन क्या करवाना चाहता है मेरे साथ। मुझे तो ओके। सिर्फ वो पाथ पे चलना है। राइट। तो मैं वहां पे अगर मैं I am कंप्लेन learning a lot. I am learning a lot from you today. welcome, thank you, thank you. So Yeah. this is magical prayer, and yes, मेरी लाइफ तो 100% चेंज की है, अभी भी हो रही है। आई कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग विद इन फ्यू आवर्स, डेज और मंथ्स, बिकॉज आई डोंट नो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कितना मेरे अंदर है, ठीक है, तो वो मुझे कितना क्लीन करना पड़ेगा, आई डोंट नो। आई हैव टोटली ब्लॉक माई सोशल मीडिया फॉर 2 years Okay. because I was feeling so much jealous by watching other people's profiles and post and all that. I have to learn appreciate people, and I learned it. और अभी वो चीज है ही नहीं, जेलसी होती ही नहीं। इतना मजा आता है लोगों को अबंडेंस में देख के। Yes. Yes. तो कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं शुरुआत में जो वियर्ड लगे, बट इट इज ओके, वो आपके लिए है, एंड आई थिंक यू शुड डू इट। Right. 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 जैसे कि मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी that you run your courses. So I want to ask you how your courses are different from other, or what exactly you provide in your courses. यस, तो नॉर्मली बेसिक हीलिंग होता है, होपोनोपोनो बेसिक कोर्स होता है, और दूसरा होता है एडवांस। बेसिक में वी आर डूइंग ओनली 108 चैंटिंग फॉर अदर्स, other people, other situation, other things. Like I just told you कि आपका अगर लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट वीक मेरा प्रिंटर चालू नहीं हो रहा था, एंड माय हस्बैंड टोल्ड मी के फॉरगेट अबाउट इट, अभी बुलाना पड़ेगा टेक्नीशियन, एंड देन ओनली वी कैन डू इट। एंड आई वाज लाइक के इसको चालू ही रहने दो, आई विल ट्राई आफ्टर 10 minutes। एंड देन मैं अपने रूम में आई, मैंने चैंट किया 5 मिनट, एंड देन मैं किसी का कॉल आया, मैं भूल गई उसके बारे में। फिर हाफ एन आवर के बाद मुझे याद आया मुझे प्रिंट निकालनी है, मैं फिर से गई, एंड यू वॉन्ट बिलीव, प्रिंटर चालू हो गया। I I remember. I remember. I have the same example. One day I was working and my laptop was not working, and I just said sorry because I learned from you, and I just kissed my laptop. Please, I really love you. And after some time it started working, and I thought that it will not work now because by mistake it fell down. But then it started working, and I was surprised. यस यस, तो एवरीथिंग इज एनर्जी, Yes, ओके, एंड एनर्जी कैन absolutely. नॉट डिस्ट्रॉय, इट्स शिफ्ट। तो जब आप अपनी एनर्जी उसको देते हो लव वाली, तो इट हैज टू वर्क। Right, right, सो right, right. दिस इज बेसिक, एंड अदर थिंग जो मैं कोर्स में कराती हूँ इट इज एडवांस। तो एडवांस में आपको 108 चैंटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। आप जो भी सिचुएशंस है, जो भी मेमोरी है, जो भी डेटा है, उसको आपके अंदर रिजॉल्व करते हो।
आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उस चीज की, मेमोरी की, इमोशंस की, और आप अपने अंदर उसको हील करते हो. दैट इज एडवांस. और मेरे एडवांस कोर्स में वैसे ज्यादातर लोग ये एडवांस होपनोपोनो कराते हैं, ईएफटी कराते हैं. मैं बाकी 2-3 टेक्निक मर्ज करती हूँ. उसके अलावा एडवांस में मैंने फिफ्थ फ्रेज लिया हुआ है, जो डॉक्टर जो विटाले ने अभी 4-5 साल पहले उनकी, तो मैंने उनकी बुक्स और वो सब रिफर किया है. बहुत डीप मैं गई हूँ इसके अंदर, क्योंकि बीइंग ए साइंस पर्सन आई वाज सो मच लॉजिकल. राइट नाउ आई एम मैजिकल, बट यस, तो मुझे था कि ये प्रेयर वर्क कैसे करती है, आई वांट टू नो अबाउट इट, ऐसा. तो मैं बहुत सारा मटेरियल से भी गो थ्रू करी हूँ. और तो वहां से, और फिर अभी जैसे मैबल कैट्स इसको बहुत ज्यादा अच्छे से वर्ल्ड में होपनोपनो का प्रचार कर रही है, तो उनके पास से सबका मिला के मैंने टूल्स भी लिए हैं. होपनोपनो टूल्स आर दैट के जो होपनोपनो जो 4 फ्रेजेस है उसको पूरा रिप्लेस करते हैं. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सोलर ब्लू सोलर वाटर का. तो मेरी यूट्यूब चैनल पे है, जॉली जलपा पे. तो वो पानी, अब जब ब्लू बॉटल में, ब्लू कांच की बॉटल के अंदर आपको पानी भरना है और सनलाइट में 1 घंटे के लिए रखना है, तो वो वर्क करता है एज ए हो ओपोनोपोनो. हो ओपोनोपोनो, हो मीन्स एरर, द वर्ड हो मीन्स एरर, पोनो पोनो मीन्स करेक्शन. ठीक है. तो वो जो भी सिचुएशन या थिंग या इमोशन जो भी आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए ये वर्ड है, विच इज हवायन वर्ड. ठीक है. तो वो जो पानी बन जाता है 1 घंटे में, वो होपोनोपोनो वाटर है, आप उसको किसी भी तरह यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल किसी को स्किन का इश्यू है तो उससे आप फेस साफ कर सकते हो. आप आपके घर के मटके में डाल दो, सबके पानी में आ जाएगा. आप नहाने के पानी में डाल सकते हो, खाना बना सकते हो उससे. और आप ऐसे ही नेचुरली पी रहे हो, तो वो हो पोनो मतलब वो क्लियरिंग करता है आपके अंदर जो भी मेमोरी है नेगेटिव उसको. एंड आई ट्राई दिस वाटर फॉर अराउंड 9 months एंड इट वर्क्स मैजिकली. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक बार बताना, ब्लू कलर की बॉटल में सनलाइट में रखना है. ब्लू कलर की कांच की बॉटल होनी चाहिए. ओके ओके, ठीक है. अगर व्हाइट है आपके पास तो आप उसके ऊपर सेलोफेन ब्लू पेपर जो आता है वो लगा दो, और उसको अंडरस्टूड. 1 घंटे के लिए सनलाइट में रखो. तो सनलाइट में जब रखना. सन की लाइट उसके अंदर से वो ब्लू कलर से पास होती है, तो उसके अंदर कुछ रेडिएशन होता है, ऐसे रेडियोएक्टिव तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे वो वाटर है वो हो ओपोनोपोनो वाटर बनता है. तो हो ओपोनोपोनो वाटर मीन्स वो आपकी जो नेगेटिव डेटा है उसको क्लियर करता है. एंड एज वी ऑल नो कि अवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर. राइट राइट. तो जब वो हमारे एक एक सेल में जाता है तो बहुत ही जल्दी वर्क करता है. तो आपके जितने भी नेगेटिव डेटा है वो बहुत ही फास्ट अननोइंगली रिजॉल्व होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. I'll start doing this. And it is the simplest Ho'oponopono tool. Everyone can do it. Very And easy. Actually, it's very easy. easy. Right. Right. And it works fast, believe me, क्योंकि पानी है. पानी nowadays we all know कि पानी किस तरह से वर्क करता है, how we can charge it and all that. तो yes, you can start this drinking Ho'oponopono water. It's a And we magical have to water. just keep it for 1 hour. 1 hour is enough. 1 hour is enough. और वो पानी खराब नहीं होगा, आप उसको हफ्ते तक भी यूज कर सकते हो. आपने सोचा कि मैं एक दिन बना लेती हूँ, फिर 1 गिलास पानी में उसको थोड़ा यूज करती हूँ, कल यूज किया ऐसे वैसे, फिर 1 हफ्ता चलाऊंगी, फिर टाइम नहीं है दूसरे हफ्ते 1 बॉटल, तो वो भी चलेगा. Nice. Very nice. Yes. Right. So, like, I was not aware about all these things. What exactly is in your course? I think you have told so many things. What more? Yes. तो मैंने जैसे बोला कि how एडवांस long is the duration if someone wants to
start doing? 1 मंथ कोर्स, तो उसमें वैसे तो नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे रहता है, लेकिन क्योंकि मैं टूल्स वगैरह बहुत कुछ मेरे कोर्स में रहता है तो मैं कवर नहीं कर पाती हूँ उतने में, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेती ही लेती हूँ। तो संडे के अलावा ऑलमोस्ट हर रोज रहता है, मंडे टू सैटरडे मेरा क्लास रहता है और 1 मंथ का बैच रहता है। और पूरा साल ये चलने वाला है। जैसे लास्ट ईयर तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग ले रही थी, मेरा जैसे जैसे टाइम होता था, बट इस साल जनवरी से ये स्टार्ट हो गया है। और यस, टाइम चेंज होते रहेंगे मेरे बैच के। जैसे मैंने लास्ट मंथ मॉर्निंग टाइम रखा था, मार्च में मैं सोच रही हूँ इवनिंग टाइम रखने के लिए। तो क्या है, मैं टाइम अगर शिफ्ट करूंगी तो जो लोगों को वो टाइम पे सूट नहीं हो रहा है वो लोग भी उसको कभी ना कभी पूरे साल में मंथ में कोई भी मंथ में ज्वाइन कर पाए, वैसी मेरी वो है। तो इसके लिए मैं टाइम चेंज करती रहूंगी। मार्च में मे बी इवनिंग टाइम रहेगा मेरा सेशन का, तो मैं होपोनोपोनो की बैच लेती हूँ और उसमें ये टूल्स वगैरह फिर डिटेल में ये सब कराती हूँ। लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि जो लोग भी आए, अभी तक बहुत लोग कर चुके, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, बट आई ऑलवेज से दैट कि डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीज मेरी लाइफ में हो जाए, इसके लिए मुझे ये करना है। इंटेंशन लेके मत आइएगा, Okay, okay. क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, यू नेवर नो। You never know. Right, right. तो और दूसरा भी मैं करती हूँ कि ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती है ना, कैसा है जयश्री, कि अगर आप छोड़ दो ना एक बार, तो आप वही आपके रूटीन में चले जाते हो, आपको पता नहीं पड़ता कब आप रूटीन में चले गए, फिर से वही रिपीट पैटर्न आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गई। तो मैंने क्या Totally किया है agree. कि हाँ, पूरा साल मैं बैच चलाने वाली हूँ। और जो ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, वो एकदम मिनिमम अमाउंट पे करके नेक्स्ट मंथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। Wow, this is amazing because consistency is very important. This is amazing. यस, तो एनर्जी एक्सचेंज एकदम मिनिमल रखा है मैंने, और वो पूरा साल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट थे, उन लोगों ने इस बार भी वही अमाउंट छोटा सा दे के पे करके मेरे साथ करा है, और पूरा साल भी वो कंटिन्यू रखेंगे। तो Okay, great. दिस इज द, यस, One more thing I have heard about you that you have written a book, if I'm right. यस, यस, आई एम ऑथर ऑफ बी लाइक अ बटरफ्लाई। Wow, nice. दिस इंग्लिश, दिस इज हिंदी। Okay, it is in both version. Oh, very nice. Then I can like gift it to my like anyone in my family. यस, यस, तो इसमें What मैंने exactly सिंपल, in this book? Yeah. इसमें मैंने सिंपल से 11 टूल दिए हैं कि कैसे मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। विद इन 1 और 2 ईयर मैंने ऐसे क्या क्या चीजें की लाइफ में, और सिंपल स्टेप्स लाइक ग्रेटिट्यूड है, होपोनोपोनो है। और होपोनोपोनो के बाद ही मैंने डिवाइन से एक्सपेक्टेशन किया था, मतलब इंटेंशन रखा था, इंटेंशन या सरेंडर किया था कि नाउ आई वांट समथिंग इन माय लाइफ, ऐसी कोई चीज कि जो मैं घर पे रह के कर सकूं, मेरी डॉटर को देख के कर सकूं, बट दैट मस्ट बी समथिंग डिफरेंट जो लोग कर रहे हैं उससे। और मेरी जो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ मोटिवेशन डालूं, उनको मेंटली और फिजिकली हेल्दी बनाऊं, उसके रिलेटेड मुझे कुछ चाहिए। Okay. तो मैं ऐसा कभी कभी बोलती थी, सोचती थी, और होपोनोपोनो मेरा कंटिन्यू रहता था। एंड आफ्टर परस्यूइंग दिस जर्नी, आफ्टर 2 years आई गॉट हो हैंडराइटिंग एनालिस्ट वाला कोर्स और ग्राफोलॉजी कोर्स इन माय लाइफ, एंड दैट आल्सो मेड माय लाइफ अमेजिंग। और ब्रेक थ्रू Wow. हुए उसके बाद भी मेरी लाइफ में बड़े बड़े, एंड राइट नाउ बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग टेस्टिमोनियल है मेरे इंस्टाग्राम पे भी, आप देख सकते हो कि किस तरह से लोगों की लाइफ चेंज हुई है। मेरी लाइफ ग्राफोथेरापी से चेंज हुई है, क्योंकि मैं एक हैंडीकैप हूँ, स्कोलियोसिस है मुझे बाय बर्थ। तो वो जो मेरा बैक पेन था, आई वुड से कि अराउंड 35 years ओल्ड बैक पेन, मैं छोटी थी तब से बैक पेन था। और इंडिया के, एशिया के फर्स्ट नंबर डॉक्टर ने बोला था कि ये क्योर नहीं होगा, आप भूल जाओ, आपको अभी इसी चीज के साथ जीना है पूरी लाइफ, ठीक है। तो विद इन 2 months ऑफ ग्राफोथेरापी मेरा वो बैक पेन पूरा चला गया। Wow. Okay. एंड उस बात को अभी 1 साल के ऊपर हो गया, एंड आई एम वर्किंग राइट नाउ अराउंड 14-15 hours अ डे
without any kind of pain. My goodness. We will definitely schedule another live to discuss about this. Definitely. Definitely, definitely. So this is another tool with me. तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे पे इतनी कृपा कर दी है. I am blessed with two big tool, one Ho'oponopono, one ग्राफोथेरापी, कि जिससे मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म कर ली है. और मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, दो चीज कर लो लाइफ में, लाइफ सेट है. क्योंकि ग्राफोथेरापी से भी आपकी लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सारी एरिया में बहुत ही मेजर इवॉल्विंग चेंज आते हैं. तो एक तरफ And आप we are ये also lucky that we are listening to you. माय प्लेजर कि मैं ये चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और शायद अगर इस लाइफ से एक इंसान की भी लाइफ चेंज होती है ना, तो इट इज वर्थ फॉर बोथ ऑफ अस. बिकॉज आई नो व्हेन आई वाज इन माय जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे कहाँ कहाँ गो थ्रू करना पड़ा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी मेंटर और कोच एट दैट टाइम, बिकॉज ऑफ माई स्कार्सिटी माइंडसेट रिलेटेड टू मनी स्पेंड करना, ये वो. ठीक है, तो मैं वो भी नहीं कर पाती थी, अपने लिए कोच भी नहीं ले सकती थी, बिकॉज माई ब्लॉकेज. राइट. ठीक है, तो मैंने खुद ही इस जर्नी में खुद ही स्ट्रगल करा. इट्स ओके, वहां से भी लर्निंग मिली. नहीं तो ये सब मैं करती नहीं शायद, और आज इतना अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाती कि क्या होपोनोपोनो कैसे वर्क करता है, अगर मैं उस जर्नी में से पास नहीं होती तो. क्योंकि आज Absolutely. बहुत सारे लोग कराते हैं होपोनोपोनो, सबको पता है, रिजल्ट मिलता है. क्योंकि ये ऐसी प्रेयर है ना, ये 4 सेंटेंसेस इटसेल्फ इतने मैजिकल है, उनकी वाइब्रेशन ऐसी है कि इवन तो आपको नहीं पता है ना इसका कोई मीनिंग, और आप चैंट कर रहे हो ना, आप हील कर रहे हो अपने आप को. Okay. तो इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो वो तो वर्क करता ही करता है. बट आप उसको जान के करोगे तो इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट. Okay. Thank you so much for sharing a lot of information today. And we will definitely plan a next live very soon to discuss graphotherapy. And thank you so much for changing a lot of lives. Really, I learned a lot today. I really learned a lot. Thank you, Jayashree, for calling me. Thank you. Thank you so much, everyone. Okay, bye-bye. Have a happy weekend. Bye. Bye.